مصر کے شہر قاہرہ میں صحرا کے قریب ایک بستی آباد تھی، جہاں پر زیادہ تر لوگ عطر فروشی کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ یہ بستی نہ صرف قاہرہ میں بلکہ پورے مصر میں مشہور تھی۔ یہاں کی ہوا میں ایسی خوشبو رچی بسی تھی کہ جو بھی مسافر یہاں سے گزرتا تو اسے ہوا میں موجود خوشبو سے ہی سمجھ آ جاتی کہ وہ اسی بستی میں موجود ہے جسے خوشبوؤں کی بستی کہا جاتا ہے۔ اسی بستی کی تنگ مگر روشنیوں سے بھری ہوئی گلی میں ایک ابو جابر نامی شخص کی دکان تھی۔ اس کے چہرے پر بڑھاپے کی لکیریں اور سر پر ایک پرانی سی دستار، سادہ مگر صاف ستھرا لباس اور آنکھوں میں ایسا اطمینان تھا کہ جیسے وہ اپنی زندگی سے مکمل مطمئن ہو۔ ابو جابر سالوں سے اسی دکان پر کام کر رہا تھا اور اسی کام کی بدولت اس کے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ اس کی دکان سے چمیلی، عنبر اور زعفران ایسی نفیس خوشبوئیں آیا کرتی تھی جو صرف بدن کو ہی نہیں بلکہ دل و دماغ کو بھی معطر کر دیتی تھی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی کبھی انسان کے حالات ایسے نہج پر لے آتے ہیں کہ وہ انسان کے ہاتھوں سے کچھ بھی کروانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں ایک قطرہ بھی لالچ کا پڑ جائے تو وہ پورے جسم کو ناپاک کر دیتا ہے، اور ایسا ہی کچھ ابو جابر کے ساتھ بھی ہوا تھا، جس نے ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو اس نے سالوں سے نہیں کیا تھا۔ ابو جابر سالوں سے اپنی دکان پر عطر فروش کرتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد یوں ہوا کہ ملک شام سے کچھ مسافر یہاں تک آ پہنچے اور ابو جابر کی دکان کے قریب ہی کچھ دکانیں لے لی۔ وہ نہ صرف شام بلکہ اردن اور فلسطین سے بہت عمدہ خوشبوئیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ بازار میں ان کی دکانیں مہنگے عطروں سے سج گئی اور ہر کوئی نئی نئی خوشبوئیں خریدنے کے لیے ان کی دکانوں کی طرف رخ کرنے لگا۔ 50 سالوں میں پہلی بار ابو جابر کا کاروبار مان پڑنے لگا۔ اس کے پرانے سے پرانے گاہک اس کی دکان کی بجائے نئی دکانوں کا رخ کرنے لگے۔ جو کوئی اکا دکا گاہک اس کے پاس آتے وہ یہ کہہ کر اس کی دکان سے چلے جاتے کہ بابا تم ابھی بھی پرانے عطر بیچ رہے ہو، اپنے ہمسایوں کی طرف دیکھو، وہ دور دراز علاقوں سے نئی نئی خوشبوئیں لے کر آئے ہیں، اب تمہاری خوشبوئیں کوئی نہیں خریدے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دکان بھی ان کی طرح چلے تو تمہیں بھی کچھ نیا لانا ہوگا۔ یہ بات سن کر ابو جابر مایوس ہو جاتا۔ وہ بڑھاپے کی دہلیز پر تھا مگر اس کے دل میں یہ آرزو تھی کہ اس کی دکان ویسے ہی چلنے لگے جیسے پہلے چلتی تھی اور اس کے دکان کی عطروں کی خوشبو ہر سو ویسے ہی بکھر جائے۔ لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بڑھاپے کی عمر میں وہ دور دراز علاقوں کا سفر بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس کے دل میں شیطان نے جگہ بنا لی۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا جس سے اس کی دکان پر گاہکوں کی بھرمار ہو جائے۔ لالچ نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا اور اس کے دل میں ناجائز مال کمانے کی آرزو پیدا ہو چکی تھی۔ اسی آرزو کے ساتھ وہ اپنے گھر گیا اور سوچنے لگا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے سر پر اس کی بیوی اور اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھائے گا، اور وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اسی سوچ میں وہ اٹھا اور گھر کے پرانے کمرے کی طرف گیا جہاں پر پرانا سامان رکھا تھا۔ اس سامان کے اندر سے اس نے ایک پرانا سا صندوق نکالا اور اس صندوق کو کھولا۔ صندوق کے اندر ایک زہریلی سی خوشبو تھی۔ اس نے اس شیشی کو کھولا اور اس کے پاس جتنی بھی عطر کی شیشیاں موجود تھی ان سب میں ملاوٹ کرنے لگا اور سوچنے لگا یہ اب خوشبوئیں نہیں رہی بلکہ نصیبوں کے گرے ہیں۔ ایک دفعہ تو ابو جابر کے ضمیر نے اسے روکنا چاہا مگر دولت کی لالچ اس کے دل پر غالب آ چکی تھی۔ وہ بے اختیار کہنے لگا اب میرے پاس خریداروں کی قطار لگے گی اور اب میں دولت سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ اگلے روز اس نے وہ شیشیاں اپنی دکان پر ایک ترتیب سے سجا دی۔ ان کی خوشبوئیں اب بھی ویسی ہی تھی لیکن ان میں سے ایک انوکھا جادو محسوس ہوتا تھا۔ اب جو کوئی بھی اس کی دکان کے پاس سے گزرتا تو وہ اس کی دکان کی طرف کھینچا چلا آتا اور وہ انہیں اپنی خوشبو مہنگے داموں فروخت کرتا۔ جو کوئی بھی اس کی خوشبو کو خریدتا اور گھر جا کر اسے استعمال کرتا تو کچھ دیر بعد اسے سر میں شدید درد محسوس ہوتا یا بے قراری کی کیفیت معلوم ہونے لگتی، کسی کا دل گھبرانے لگتا اور کوئی چکر کھا کر زمین پر گر جاتا۔ ایک عورت شکایت کرنے لگی ابو جابر تمہاری خوشبوئیں تو لاجواب ہیں لیکن اسے لگانے کے بعد میری بیٹی بیمار پڑ گئی ہے، ایسا کیا ہے اس خوشبو میں کہ اس کا اتنا برا اثر ہو رہا ہے؟ ابو جابر نے شرمندگی سے نظریں چرائیں اور آہستہ سے بس اتنا ہی بولا کہ بیٹی یہ محض ایک اتفاق ہے۔ کیا یہ واقعی اتفاق تھا؟ یہ معاملہ بار بار پیش آنے لگا۔ جو کوئی بھی اس کی دکان سے عطر خریدتا اسے اس کا کوئی نہ کوئی برا اثر ضرور ہوتا، لیکن کیا ابو جابر خود کو سنبھال پائے گا یا لالچ اسے تباہی کے گہرائی میں اور دھکیل دے گا؟ ایک دن مریم اس کی دکان پر تشریف لائیں۔ وہ عورت بہت نیک خاتون تھی اور محلے کے یتیم بچوں کی خادمہ تھی۔ اس بوڑھی عورت نے بھی ابو جابر کی دکان سے خوشبو خریدی لیکن جیسے ہی اس نے خوشبو اپنے ہاتھ پر لگائی اس کا چہرہ فک ہو گیا اور اسے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس کی نظریں سیدھے ابو جابر پر جا ٹھہری
उसने कड़क लहजे में अबू जाबिर से कहा, बाबा ये खुशबू नहीं धोखा है, तुम इतर नहीं बल्कि किसी की बद्दुआ की खुशबू बेच रहे हो। अबू जाबिर हैरान रह गया और घबरा कर बोला, बहन ये आप क्या कह रही हैं? ये तो चमेली के फूलों से तैयार की गई खुशबू है। मैंने हमेशा अपनी दुकान पर खालिस सौदा बेचा है। मैं कसम उठाता हूँ मैंने इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं की है। उम्मे मरियम ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं भाई, ये खुशबू मिलावटी और जहरीली है और ये मेरे यतीम बच्चों के काबिल नहीं है। ये उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाने आई है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये जहरीली चीजें हवा से भी ज्यादा तेज सफर करती हैं। अबू जाबिर की पेशानी पसीने से तर हो गई। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि उम्मे मरियम ने एक जुमला अदा किया कि जिस दिन तुमने ये इतर अपने जिस्म पर लगाया, तुम्हें तुम्हारे फरेब का तब पता चलेगा। तुम्हें तब मालूम होगा कि ये खुशबू कितनी जहरीली है। उम्मे मरियम के अल्फाज अबू जाबिर के दिल पर बोझ बनकर उतरे। शाम का वक्त हुआ और पूरी बस्ती को अंधेरे ने लपेट लिया। आसमान पर चांद छुप गया था जैसे शर्मिंदगी की चादर ओढ़े हो। पूरी बस्ती ख्वाबों की निगाहों में डूबी हुई थी, लेकिन अबू जाबिर की आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था। उसने आहिस्तगी से अपनी वो शीशी उठाई जिसके अंदर उसने मिलावट की थी और काफी दिनों से उसे फरोख्त कर रहा था, लेकिन खुद कभी इस्तेमाल नहीं की थी। यूं ही उसने ढक्कन खोला तो एक अनोखी सी खुशबू उभरी। ना वो चमेली थी, ना अंबर और ना जाफरान, बल्कि एक सर्द और पूरी सरार खुशबू थी, जैसे बोसीदा कपड़े, टूटे वाते और खामोश चीखे हों। फिर गोया उसने किसी मजबूरी के तहत 2 कतरे अपनी कलाई पर टपका दिए। काफी देर तक वहाँ सन्नाटा सा छाया रहा, जैसे हवा रुक गई हो। कमरे की दीवारें घूमने लगी। अबू जाबिर घबरा कर इधर उधर देखने लगा। हर तरफ बेचैनी फैल रही थी। उसे अपने कानों में अपने ग्राहकों की आवाजें सुनाई देने लगी और उनकी शिकायत और उनकी बद्दुआएं हवाओं में घूम रही थी। कोई कहता, बाबा मेरी बेटी बेहोश हो गई है, और कोई कहता, बाबा मुझे मेरे शोहर ने घर से निकाल दिया। बाबा इस खुशबू ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। लोगों की चीखें उसके कानों में टकरा रही थी और उस पर वहशत तारी हो रही थी। इसी वहशत में उसने वो शीशी जमीन पर पटक दी। अंदर से ना कोई जादू निकला और ना कोई खुशबू, बस एक जोरदार चीख सुनाई दी। अबू जाबिर कांपता हुआ पीछे हटने लगा और फिर एक आवाज सुनाई दी जो उसके ज़मीर की आवाज थी। उसके ज़मीर का साया उसके सामने ही मौजूद था। वो उसे खौफनाक आवाज में कहने लगा, कहा था ना तुम्हें कि ये खुशबुएं नहीं बद्दुआएं हैं। लोग समझते हैं कि वो खुशबुएं खरीद रहे हैं, मगर दर हकीकत में वो अपने अंजाम की पहली खुशबू ले जा रहे हैं। अबू जाबिर के होंठ कांप रहे थे और वो कपकपाती हुई आवाज में बोला, तो तुम्हें मुझे ऐसा करने पर मजबूर क्यों किया? उसके ज़मीर ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, मैं तो तुम्हारे अंदर ही था। तब से जब तुमने पहली बार खालिस इत्र में जहरीली खुशबू मिलाई थी, मैं तब से ही जन्म ले चुका हूँ। अबू जाबिर की आंखों में आंसू आ गए। उसे नजर आने लगा कि उसने अपने ज़मीर के साथ बहुत बुरा किया है। लालच और हवस की वजह से उसने अपने ज़मीर को जहर आलूद कर दिया है। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गया। उसके होंठों पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, माजरत, लेकिन हवा ने भी उसे सुनने से इनकार कर दिया। वो उसी वक्त रब के हजूर सजदे में गिर गया और अपने गुनाहों की तौबा करने लगा। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी मखलूक के साथ धोखा किया है। मैंने ना सिर्फ तेरी मखलूक के साथ बल्कि अपने ज़मीर का भी सौदा किया है। मेरा ज़मीर भी मुझे मलामत कर रहा है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा कभी भी मिलावट नहीं करूँगा, चाहे मैं भूख से ही क्यों ना मर जाऊँ, लेकिन मैं कभी भी किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलूंगा। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। इसी दुआ के साथ वो उसी जगह पर सो गया। रात को ख्वाब में उसे एक बुजुर्ग मिला जिसका सफेद लिबास और सफेद दाढ़ी थी। वो अबू जाबिर से कहने लगा, अबू जाबिर, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन गलती होने के बाद माफी मांगना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। अल्लाह तुम्हारी तौबा जरूर कबूल करेगा। तुम अपना इत्र बेचने का काम जारी रखो और उसमें ईमानदारी से काम करो। अल्लाह तुम्हारी खुशबू में बरकत डालेगा। इसके साथ ही अबू जाबिर की आंख खुल गई। बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाबा जी, वो सुलेमान था, मोहल्ले का एक यतीम बच्चा। उसकी नाक बचपन से खराब थी। वो किसी भी खुशबू को महसूस नहीं कर सकता था। वो हमेशा अबू जाबिर से कहता, बाबा कोई ऐसी खुशबू लाओ जो मेरे दिल तक पहुँचे। अबू जाबिर ने दरवाजा खोला। सामने सुलेमान खड़ा था। उसकी आंखों में चमक और रोशनी थी। सुलेमान ने कहा, बाबा मैंने ख्वाब में एक खुशबू देखी है जो मेरी नाक महसूस कर सकती थी। क्या तुम्हारे पास कोई खुशबू है? अबू जाबिर कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुबान जैसे जकड़ गई हो। इतनी देर में एक कोने से उम्मे मरियम की आवाज गूंजने लगी, अबू जाबिर, अच्छी खुशबू बनाई नहीं जाती, पहचानी जाती है। अब तुमने सच को कितना समझ लिया, ये तुम खुद साबित करोगे।
अबू जाबिर ने सुलेमान के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम दोपहर को मेरी दुकान पर आना, मैं तुम्हें खुशबू दे दूंगा। उसके बाद सुलेमान उसके दरवाजे से चला गया। अबू जाबिर घर के अंदर गया और अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खाने लगा और फिर दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर पहुंचकर भी उसकी आंखों के सामने उसका ख्वाब आ रहा था और उसे उस बुजुर्ग की नसीहत याद आने लगी कि अबू जाबिर तुम अपनी मेहनत को ईमानदारी से कायम रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। उसने वो सारी शीशियाँ जिनमें उसने मिलावट की थी वो सारी निकाल कर कूड़ेदान में फेंक दी और फिर खालिस इतर तैयार किया और फिर अल्लाह का नाम लेकर उसने अपना काम शुरू किया। उसके पास जो खालिस इतर मौजूद था उनको नई शीशियों में भरने लगा और उन पर अल्लाह का नाम लेकर फूंकने लगा। कुछ ही देर में सुलेमान उसकी दुकान पर आ गया और उसे आकर कहने लगा, बाबा जी मुझे वो खुशबू दे दें। अबू जाबिर ने सुलेमान की तरफ देखा और फिर शीशी आगे बढ़ा दी। सुलेमान ने शीशी अपने हाथों में थाम ली जैसे कोई खजाना पा लिया हो। उसकी आंखों में उम्मीद की एक रोशन चमक थी। अबू जाबिर के दिल में एक हलचल सी मच गई और वो दिल में सोचने लगा कि क्या वाकई ये खुशबू उसके काम आ सकती है या फिर इसका भी इस यतीम बच्चे को कोई फायदा नहीं होगा। सुलेमान ने आहिस्ता से पूछा, बाबा मैं इसे लगाऊं क्या? अबू जाबिर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया और फिर उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। यह इतर था तो खालिस, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे उसके बंद नाक को ये खुशबू महसूस हो जाए। उसके दिल में एक अजीब सा तूफान उठने लगा। उसने उसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं की थी, लेकिन सिर्फ जिक्र इलाही से उस पर फूंक मारी थी। सुलेमान ने थोड़ी खुशबू अपने कलाई पर लगाई, फिर जैसे माहौल सा बदल गया हो। सुलेमान के चेहरे पर एक गहरा सा सुकून छा गया, ऐसा सुकून जो बरसों के जख्म का मरहम बन गया हो। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहने लगा, बाबा ये वही खुशबू है जो मेरे ख्वाबों में आती थी। अबू जाबिर का जैसे दिल सा रुक गया, उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो बेकाबू होकर जमीन पर बैठ गया और अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। कई सालों बाद शायद उसके हाथों से कोई भलाई का काम हुआ था, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये उसकी तौबा का नतीजा था? उसने इस खुशबू में कोई खास तब्दीली नहीं की थी, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? एक ऐसा बच्चा जिसका नाक बचपन से ही बंद था और उसे किसी भी किस्म की खुशबू महसूस नहीं होती थी, आखिर उसकी सूंघने की हिस्स कैसे ठीक हो गई? कुछ ही देर बाद उसके कानों में एक सरगोशी गूंजने लगी, हर बुराई के साथ कोई अच्छाई भी पोशीदा होती है। अबू जाबिर हैरानी से चौंक गया। उसने नजरें उठाकर देखा, उसके सामने वही बुजुर्ग था जो उसने ख्वाब में देखा था, जिसे देखकर अबू जाबिर हैरान रह गया। वो अबू जाबिर से कहने लगा, तुमने अच्छा काम किया है कि तुमने हक को अख्तियार कर लिया है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। अगली सुबह बस्ती के बाजार में कुछ नया देखने को मिला। लोगों के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे कोई बोझ उतार दिया गया हो। अबू जाबिर की दुकान के सामने फिर से लोगों की कतार थी। लोग उससे खुशबू के साथ साथ दुआएं भी लेने लगे, क्योंकि सुलेमान ने ये बात पूरी बस्ती में फैला दी थी कि उसकी खुशबू की वजह से उसकी सूंघने की हिस्स ठीक हुई है। अबू जाबिर हैरान रह गया और वो खूब लोगों को इतर फरोख्त करने लगा। अबू जाबिर अपना काम ईमानदारी से करने लगा। अब उसका ज़मीर भी उसे मलामत नहीं करता था। वो सारा दिन ईमानदारी से अपना काम करता और रात को घर आकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता। अबू जाबिर के अब हालात भी बदल चुके थे और सुलेमान उसका वफादार शागिर्द बन चुका था और खुशबू की महक में लोगों के एहसासात को पहचानने लगा। एक रोज अबू जाबिर अपने घर में तन्हा बैठा हुआ था। एक बार फिर से उसके कानों में वही सरगोशी हुई, वही खामोश जहर जैसी खुशबू आई। अबू जाबिर का ज़मीर एक काले लिबास में उसके सामने खड़ा था। वो अबू जाबिर से कहने लगा, सोचा था कि तू मुझे भूल चुका होगा, मैं वही हूँ जो अभी भी तेरे अंदर जिंदा है। अबू जाबिर ने धीमी आवाज में पूछा, तो अब क्यों आया है? उसका ज़मीर हंसने लगा, मगर वो हंसी जहर की तरह नहीं थी, बस एक पुरानी कड़वी याद की तरह महसूस हुई। उसका ज़मीर बोला, क्योंकि एक शीशी अभी भी बाकी है बाबा, जो तुम्हारी दुकान पर अभी भी मौजूद है, जिससे तुमने लोगों का एतमाद चंद दिनारों में बेच दिया था। अगली सुबह बाबा ने दुकान पर जाकर लकड़ी का संदूक आहिस्तगी से खोला। अंदर एक जहरीली शीशी मौजूद थी, सालों पुरानी, जैसे आज भी सांस ले रही हो। अबू जाबिर सोचने लगा, यही वो शीशी है जिसने मेरे ज़मीर को जहर आलूद कर दिया और मुझे बेईमानी करने पर मजबूर कर दिया। मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। अगर मैं वाकई बदल चुका हूँ तो इस जहर को मिट्टी में दफन कर देना चाहिए। अबू जाबिर ने शीशी को हाथ में थामा। वो अभी भी भारी महसूस हो रही थी, जैसे वो सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि सालों के अफसोस, खताओं और गलतियों का टुकड़ा हो। उसने दूर कहीं वीरान जगह में जाकर उस अतर की शीशी को मिट्टी में दफन कर दिया। अबू जाबिर ने गुस्से से कहा, अब ना मैं झूठ बेचूंगा और ना इससे किसी की जिंदगी बर्बाद होने दूंगा, ना अपनी और ना किसी और की। अचानक माहौल में एक गैर मामूली सुकून छा गया। अबू जाबिर ने देखा कि उसका ज़मीर अब गायब हो चुका था। उसके ज़मीर को अब सुकून मिल चुका था। वक्त गुजरता गया। अबू जाबिर अब कम बोलने लगा और दुकान सुलेमान के हवाले हो चुकी थी। सुलेमान अब जवान हो चुका था
और उसकी दुकान का नाम था सच की खुशबू। आज शीशी पर एक सादा जुमला लिखा हुआ था, ये खुशबू नहीं बल्कि नीयत है। सुलेमान जो बचपन में खुशबू को महसूस नहीं कर सकता था, आज वो खुशबुओं की जान पहचान रखने लगा था। लोग कहते थे कि उसकी खुशबू में अबू जाबर की दुआओं की खास तासीर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की पहचान उसकी नीयत, दियानत और उसके ज़मीर से होती है, ताकि उसके कारोबार और उसकी दौलत से। अबू जाबर जो एक सादा और ईमानदार इतर फरोश था, वक्त के सख्त थपेड़ों और लालच के धोखे में आकर गलत राह पर निकल चला था। उसने वक्ती फायदे के लिए जहरीली खुशबू बेचना शुरू कर दी, मगर उसका ज़मीर और मजलूमों की बद्दुआएं उस पर गालिब आ गयी। ये दास्तान हमें सिखाती है कि लालच का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है और हराम तरीके से लिया गया फायदा देर पा नहीं होता। तब इंसान अपनी गलतियों का इतराक करे और अपने गुनाहों पर तौबा करे और अपने ज़मीर की आवाज़ को सुन ले, तब इंसान की तौबा कबूल हो जाती है। अबू जाबिर ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और सच की तरफ लौटा और अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दिया। जो खुशबू दिल से निकले वही दूसरों के दिलों को छूती है, और यही वो खुशबू है जो कभी मिटती नहीं बल्कि दुआओं में बसी रहती है। लिहाजा जो भी अमल करें उसमें सच्चाई, खलूस और नेकी जरूर शामिल करें, क्योंकि यही इंसान की असल खुशबू है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।